صورت حال میں ہی اڑے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک نئی پارٹی بنا سکتے ہیں یا ایک اجتماعی طور پر کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. بہرحال یہ جو تو 10 سال ان کا اقتدار باقی رہتا. تو کیا وجہ ہوئی ہے یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں؟ آپ تو پارٹی کے معاملات سے اچھی طرح واقف ہیں. یہ کون ایسے عناصر تھے اور انہوں نے کیسے یہ کام کر دیا؟ دیکھیں شامی صاحب، بات یہ ہے کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یا پچھلے 1 سال میں جو کچھ ہوا ہے، یہ بطور ایک سیاسی کارکن یہ چیز جو ہے یہ آج سے 2 سال 1.5 سال پہلے میں پارٹی کی لیڈرشپ کے سامنے گوش گزار کرتا تھا. ہیلو جی بالکل سن رہے ہیں، ناظرین بھی آپ کو سن رہے ہیں. بالکل کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے جب یعنی آپ کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ایسے ملیٹنٹ عناصر وہاں موجود ہیں، جنگجو؟ نہیں، یہ مجھے یقین تھا کہ جس حالات میں پارٹی گئی ہے، دیکھیں آپ پوری دنیا کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ کو پیپل پارٹی کے ساتھ اعلان جنگ ہے، آپ کا اس وقت عدلیہ کے ساتھ بھی اعلان جنگ ہے، پھر آپ دنیا کے جو دوسرے ممالک جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات جو ہیں رکھنے میں بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. پھر پیپلز پارٹی ہے، پھر مولانا فضل الرحمان ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹیشن شروع کر دی ہے، اور یہ ساری کنفرنٹیشن چلتی تھی. لیکن جب انہوں نے فوجی قیادت کے ساتھ بھی وہ تو بعد میں کھل کے، میں کہتا ہوں کہ کوئی جگہ نہیں یہاں ہم نے محاذ نہیں کھولا. تو اس کے بعد ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت جو ہے اس وقت جو چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ہمیں سپورٹ حاصل ہے. لیکن یہ باپ والے، یہ ایم کیو ایم والے، یہ کاف والے جو ہیں یہ تو کسی وقت بھی اڈاری مار سکتے تھے، لیکن وہ ان کو اڈاری مارنے سے روکتے تھے. تو کوئی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ باپ ہو یا ایم کیو ایم یا دیگر جو اتحادی تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس وقت؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کا پریشر ضرور تھا کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے. تو لیکن یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ اگر وہ نیوٹرل ہو گئے تو نیوٹرل ہونے کے بعد پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ جو ایم این اے تھے ہمارے ان میں بھی بے پہچانی پائی جاتی تھی، جو ہمارے کارکن تھے ان میں بھی بے چینی پائی جاتی تھی. اور میں آپ کو یہ بات بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی فیڈرل منسٹر پنجاب کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں تھا. اگر یہ مشاورت کا عمل ہوتا تو پھر یہ بزدار صاحب کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی. مشاورت کی آپ بات کریں، کس سے مشاورت؟ کیا اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی یا آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل سیاسی معاملات کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل مشاورت نہیں ہونی چاہیے. مشاورت ہوتی ہے پارٹی کے ورکر سے، مشاورت ایم پی اے سے، اپنے منسٹر سے. مثال کے طور پر میں صرف ایک مثال ضرور دینا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا جو کیس ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کا، القادر ٹرسٹ والا. جی، اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات کور کمیٹی میں آتی، اگر یہ بات فیڈرل کیبنٹ میں آتی کہ منی لانڈرنگ کا پیسہ 190 ملین پاؤنڈ کا حکومت برطانیہ نے این سی اے کے ذریعے ریکور کر کے وہ پاکستان کی حکومت کو دیا ہے، کیا ہم یہ پیسہ جو ہے یہ جو بزنس مین ہے اس کو واپس دے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک بھی جو رائٹ مائنڈڈ پرسن ہے، جس کو تھوڑا بھی قانون کا علم ہے، وہ یہ نہ کرنے دیتا. دیکھیں جو صاحب یہ کابینہ میں تو آئی نا، کابینہ میں تو یہ زیر بحث آیا اور فیصلہ کابینہ نے کیا. پھر نہ پلیز اس میں کابینہ میں یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے ڈاکومنٹ. یہ بالکل اس میں کابینہ میں ڈسکشن نہیں ہوئی، انہوں نے سیلڈ دستخط کیے ہیں. میرا خیال یہ بات ضروری ہے سمجھنی کہ ان کے بالکل ان کے علم میں نہیں تھا. ہمارے علم میں یہ
2-3 महीने के बाद आई कि ये हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे इसकी तकलीफ सबसे ज्यादा इसलिए है कि 2002 में जब ये कानून बना था तो उस वक्त मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था, और हमारा कानून बनाने का मकसद ये था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग ये समझते थे कि लंदन जो है वो करप्ट लोगों के लिए और करप्ट हुक्मरानों के लिए सेफ हेवन है, और वो अपना पैसा वहां से लूटते हैं, यहाँ जमा कर देते हैं, उनको पूछता नहीं। तो उसके लिए कानून साजी की गई थी कि अगर ऐसा पैसा हो, डर्टी मनी हो, तो उसको रिकवर करके वो हम ठीक है। ये तो आपने उसका बैकग्राउंड बता दिया ना, वो मामला चल रहा है, उन्होंने आज जवाब भी दे दिया। ज़रा मैं सियासी मौजू पे वापस आता हूँ, आपका वक्त चूँकि कीमती है, आपने एक मीटिंग में भी जाना है, गालिबन चौधरी साहब के पास आप बैठे हुए हैं। ये बताइए, जो उड़ने वाले परिंदे हैं तहरीक इंसाफ से जो खैराबाद कह रहे हैं, ये क्या आपके यहाँ डेरे डालेंगे या तरीन साहब इनको चकने के लिए तैयार हैं? जी मैं तो इस बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मेरा तो अभी तक किसी के साथ राब्ता जो है वो नहीं है। ये जो परिंदे हैं तो ये तो आपको मालूम है, और यही वजह है कि अगर ये पार्टियों में जमहूरियत हो, पार्टियों की हो, पार्टियों कंसी हो, तो फिर जो है इलेक्टेबल की पोजीशन कम हो जाती है, पोजीशन हो जाती है। एक और नुक्ता आपसे मैंने पूछना था, वो ये कि जब सदर मुमलिकत तक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए 9 मई के वाक़यात की, फवाद चौधरी और दीगर जो आला क़यादत है वो भी इससे डिस्टेंस कर रही है, लोग छोड़ें ऐसी वैसे पार्टी को। क्या वजह है कि खान साहब इस वाक़े खुल के मजम्मत नहीं करे बल्कि इसको साजिश करार दे रहे हैं? आप उन्हें समझते हैं, आपने उनके साथ काम भी किया है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो वाक़या है ये ओवरनाइट वाक़या है। 1 साल से उनको काम करने के लिए को चलिए, ये थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, दोबारा डायल कीजिए ताकि उनसे बात बेहतर हो सके। और मेरा तो ख्याल था शायद उड़ने वाले जो पंछी हैं उनको महफूज पनाहगा सरवर साहब देंगे या जहांगीर तरीन साहब देंगे, क्योंकि एक ज़माने में तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल होता था पंछियों की आमदोरफ्त के लिए भले वक्त में। तो अब तो सरवर साहब तो काफ लीग के साथ वाबस्ता हो चुके, और तरीन साहब अभी अलग है सारी सूरत आज़ादाना सूरत हाल में ही उड़े हैं। लेकिन ये है कि वो कोई अपना फैसला कर सकते हैं। उनके बारे में खबरें आ रही कि वो एक नई पार्टी बना सकते हैं या एक इज्तिमाई तौर पर किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बहरहाल ये जो परिंदे हैं ये सियासत से अलग तो नहीं रह सकते ना। नहीं, सियासत तो करनी होगी, सियासत तो उन्हें करनी है। भाई ये चंद एक दोस्तों ने सियासतदानों ने ये कहा है कि वो सियासत ही छोड़ रहे हैं ना, तंग आगे होंगे सूरत हाल से, लेकिन कब तक? लेकिन ये है कि बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो हालात पर गौर करें, और उनको अपनी कप्तानी जो है उस पर बड़ा नाज रहा है, और वो समझते हैं बर वक्त फैसले कर सकते हैं, हिकमत अमली तरतीब दे सकते हैं। तो अपोजिशन लीडर के तौर पर तो उन्होंने अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। ज़बरदस्त, बल्कि वो गवर्नमेंट में थे तब भी लगता था अभी अपोजिशन लीडर हैं, ठीक है ना। लेकिन एक मुदब्बर के तौर पर और एक दूर अंदेश सियासतदान के तौर पर जो अब उनको इम्तिहान दरपेश है, उसमें भी उनको कुछ सुरखरू होना चाहिए, और उसके लिए उनको अपना बयानिया भी तब्दील करना पड़ेगा, अपनी हिकमत अमली भी नई वज़ा करनी पड़ेगी। ये सिर्फ अपने इससे काम नहीं चलेगा, चूँकि चुनाचे से अगरचे मगरचे से। ज़मान पाक की सूरत हाल मैंने चूँकि इब्तदाई में कई चौसा बातें उनसे बात भी कर पता नहीं है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आ गए लाइन पे। जो सब आपसे जहाँ बात कटी थी वो ये थी कि ये इमरान खान साहब इस सब के बावजूद कि लोग उन्हें छोड़ भी रहे हैं और सीनियर क़यादत उनकी मजम्मत कर रही है, सबूत मैंने दिया कि सदर ममलिकत खुल के कह रहे हैं कि मजम्मत करनी चाहिए इस वाक़े की, वो क्यों नहीं कर रहे सर? वो मैं समझता हूँ कि किसी का मशवरा नहीं मानते, उनको है वो कहते हैं कि मैं जो जानता हूँ वो कोई और नहीं जानता, इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ। देखें, मजम्मत अकेली मजम्मत से काम नहीं चलेगा। अच्छा, जो लोग इसमें शामिल हैं उस पार्टी से निकालने से जो है फर्क करें ताकि दुनिया को पता चले। देखिए, अगर मेरा कोई वर्कर जो है कोई गैर कानूनी कार्रवाई में मुलव्वस होता है तो सबसे पहले बरतानिया में, दुनिया में, यूरोपियन डेमोक्रेसी में, जिसका अक्सर खान साहब जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले पार्टी उनका खिलाफ एक्शन लेती है, कानून बाद में हरकत में आता है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा घिनौना जुर्म है
जिसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है लेना चाहिए, लेकिन उसकी पार्टी को एक्शन लेना इसलिए मुश्किल है कि इस राह पे तो उन्होंने डाला है, इसको उनके खिलाफ खड़ा किया है, खिलाफ नफरत पैदा की है, की वजह से उन्होंने ये काम किया है। तो अच्छा, अभी तो आप देखें अमेरिका से खबरें आ रही हैं, जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है अपनी हुकूमत को। सर ये 66 कांग्रेसमैन है, ये पाक पैक नामी जो एक लॉबिंग इसका सिस्टम है, शहबाज गिल साहब, हाँ शहबाज गिल साहब ने भी इसे आज ट्वीट किया। चले सरवर साहब गालिबन उनसे रब्ता नहीं हो सकता। और इसी तरीके से बरतानिया से भी खबरें आ रही हैं। ये 66 थे अरकान कांग्रेस जिन्होंने तो, ये उनको एंथनी ब्लिंकन को खत लिखा है अब वहाँ तो ये के साथ, और पाकिस्तान की सूरत हाल जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनमें से फाल लोग इसमें पेश है, इसमें तो है, यानी इसमें देखें ना, वहाँ तो ये इशू बन रहा है, वो आज़ादी का इशू बन रहा है, ये फंडामेंटल राइट्स का इशू बन रहा है। वो समझ रहे हैं शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब की जा रही हैं पाकिस्तान। ये वो अपने उस नुक्ते में बयान भी करें, लेकिन इसके साथ दो नुक्ते और भी हैं। यानी एक ज़माने में इमरान खान साहब पीटीआई की जो कैंपेन थी उसमें हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, साइफ़र अमेरिका के जो इस सिलसिले में किरदार था उसको वो हाईलाइट करते रहे, और जब अब ख़ुद पे उस्ताद आन पहुंची तो लॉबिंग फर्म या जो उनका पॉलिटिकल एक्यूमेन है उसको यूज़ करते हुए तो उन्होंने कांग्रेसमैन तक अप्रोच किया, उनसे स्टेटमेंट्स लिए, और अब एंटनी ब्लिंकन साहब के नाम ये ख़त भी लिखवाया है। तो अगर उस मामले में वो फ़हम फरासत का मुजाहरा करते हुए, यानी एक ज़माने में अमेरिका के हम ग़ुलाम नहीं और दूसरे ज़माने में अमेरिकी स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत है, अगर वहाँ ये रद्दोबदल आ सकता है अपनी पॉलिसी में, तो यहाँ जो मुल्क का रियासत का मसला है 9 मई का, उस पर मजम्मत क्यों नहीं करते? मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी है, मकबूलियत उनकी है, लोग उन्हें चाहते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये जो दो मुख्तलिफ पैराएँ हैं, जो तजादात हैं पॉलिसी चेंज करने में, यहाँ क्यों नहीं करते? ये जो अना है ना, अना, वो क्या कहा है ये गाना ने, खुदी का नशा चढ़ा, ये गाना चंगेजी, हाँ जी, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा न गया, खुदी का नशा चढ़ा आप में रहा ना गया, आप में रहा ना गया, खुदा बने थे यगाना मगर बना ना गया। हाय हाय, क्या बात, क्या कहने। तो जो अना है क्या हस्बे हाल है, चाहे इधर हो या उधर हो, किसी की भी हो, उसको लगाम देना जरूरी है। तो बड़े लीडर का इम्तिहान होता है ये, और बड़े लीडर वो होते हैं जो ये नहीं है, वो जज्बात से नहीं खेलते, वो नारों का शिकार नहीं होते, वो अहदाफ पे नज़र रखते हैं और अहदाफ की तरफ बढ़ते हैं, तरबियत करते हैं अपने कारकुनों की, उनकी सरजनश करते हैं, उनके कान पकड़ते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते नहीं हैं। तो ये बड़ा इम्तिहान है, और अगर वो इस इम्तिहान में नाकाम होंगे तो बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं तो बार बार ये अर्ज़ करता हूँ, हाँ जी, ये मकबूलियत जो है कि ये लोहे की तरह नहीं होती, ये बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ़ बन जाती है, ये घटती बढ़ती रहती है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसको नतीजा खेज बनाना चाहिए, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। यही तो फहम फरासत है कि इसको ज़ाया ना होने दें। क्यों उड़ रहे हैं लोग, तो ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई कि लोग उड़ रहे हैं? हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, इतनी उन्होंने कहा ऐसा हो कोई नामाबर जो बात हमारी सुन सके, हाँ, सुन के यकीन कर सके, जाके उन्हें सुना सके। चलिए।